ਸੋ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਕੈਰੀਅਰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਡੂਸਿਕ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਐਡੂਸਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਐਡੂਸਿਕ ਇਜ਼ ਅ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਬੰਬੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਰੀਬ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਫਸਟ ਆਪਣਾ ਸਕਿੱਲ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 24 ਆਵਰਸ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਰੀਅਰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬਜੈਕਟ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਹੋਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੈਕੰਡ ਫਲੋਰ ਤੇ ਦਾਦਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਸਕਿੱਲ ਸੈਂਟਰ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਪਸ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਹੁਣ 10th ਜਾਂ 12th ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਾਈਡ ਕਰ ਸਕੀਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੈਰੀਅਰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ 10th ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 12th ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇਰ ਆਰ ਵੇਰੀਅਸ ਆਪਸ਼ਨਸ। ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕੈਡਮਿਕ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਪਣਾ बीकॉम करना है, इंजीनियरिंग करना, बीकॉम करना है, आर्ट्स ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਸਾਇੰਸ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਸਟਰੀਮ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਗਾਈਡੈਂਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਸਕਿੱਲਸ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। जैसे डिप्लोमा का 10 के बाद असी इंजीनियरिंग अगर बाद करनी तो डिप्लोमा इंजीनियरिंग कर सकते हैं, ताकि वो बाद इंजीनियरिंग CET वगैरह देनी नहीं पैंती, उसके बिना इंजीनियरिंग हो जाता है। तो थर्ड ऑप्शन इस कि असी कोई वोकेशनल स्किल भी सीख सकते नाल। तो यह सारी चीज़ा असी इस सैमीनार दसांगे। मेन चीज़ होंगी गाइडेंस की सानू एक तो होंगे कि पता होना चाहिए कि फ्रेंड ने लिता कॉमर्स इसलिए कॉमर्स नहीं लेना है, साड़ा अपना इंटरेस्ट की है। एक तो यह होना चाहिए कि साड़ा अपना इंटरेस्ट की है। दूजा कि जोड़ा असी करियर चूज करना है फ्यूचर वो ट्रेंड की है, फ्यूचर की होगा। असी हम सोच रहे कि ए लाँगे लेकिन बाद फ्यूचर वो सबजैक्ट की कोई लोड़ ही नहीं रहेगी तो फिर असी की करांगे। दैन थर्ड है कि अफोर्डेबिलिटी, कि असी यह कोर्स करना चाहते, मान लो असी MBBS करना है बट कैन वी अफोर्ड दैट, या अगर असी यह कोर्स कोई कर रहे हैं तो उसके बाद सानू की रेनोवेशन मिलेगा, सैलरी प्रॉस्पेक्ट्स है, तो यह सारी चीज़ कंसीडर असी की करते कि क्योंकि फ्रेंड ने लेता तो असी इस वाले कोर्स कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। वो सारी चीज़ें सोचनिया पैंदियां अगर कोई भी असी कैरियर चूज करना चाहते हैं। तो यह सारी चीज़ें असी डिस्कस करेंगे। साढ़े को 2 स्पीकर है, तो जो फर्स्ट स्पीकर है साढ़े वो प्रोफैसर शुभदा गाला जोड़े MD कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफैसर है, एंड शी इज़ अ मास्टर इन कैरियर काउंसलिंग। उन्होंने बहुत ही वेरियस सेमिनार्स अटेंड किए। शी इज़ असिस्टेंट प्रोफैसर देयर इन MD कॉलेज। तो मैं उन्होंने बहुत बहुत शुक्रगुजार है कि आप टाइम निकाल के हमारे साथ आए यहाँ पर बच्चों को गाइड करने के लिए। तो शी विल टॉक अबाउट कैरियर एंड देन इंद्रजीत जो साढ़े नाल उन्होंने डिस्कस कर रहे थे वो भी तुहानू दसणगे कि इन द लाइट ऑफ ऑल दिस ऑप्शन जोड़े मैडम दसणगे उन्हें असी एडूसिक नाल मिल के की कर सकते हैं, एडूसिक हाउ एडूसिक कैन हेल्प यू इन चूजिंग अ राइट कैरियर, उस तरह उधर गाइडेंस किस तरह करेंगे। सो आर वी ऑल रेडी? ओके, सो विद दिस आई विल रिक्वेस्ट शुभदा जी टू प्लीज कम एंड टेक दिस। यस यस, यू कैन क्लैप। Yeah, thank you. Good morning. Are you all charged up? Yes? Okay, first of all, I would like to thank the dignitaries of EduSIG for giving me the opportunity to connect with the youngsters, young people. It is always nice to interact with the young minds. We get positive energies from them and it makes us go ahead. So Sunday morning, I'm happy that so many have come in person and it is being live all throughout the India. So it's a very good initiative. You are connecting the youth through Gurudwara, so it's a very good initiative. And I being from Kutch, I can little bit understand Punjabi also. So I was able to make out your language. I will use majorly English and Hindi also. Okay, so are you all comfortable? Yes. So first of all, I would like to start. How many are around from 10th grade? 10th grade? Okay. And 12th? Okay, so mixed lot, we have 50% 10th and 50% 12th. So in 10th, SSC or ICSC or CBSE board? How many are from SSC board? Okay, CBSE, ICSC? Very good. And in 12th, commerce? Very nice. Science? And arts? Nobody. Okay. And in 10th, how many have already ICSE board have students have already selected either science or commerce? You have already selected commerce or science? You have done what? Science. And you are science. Very good. So when you are taking ICSE science up to 10, so various more options are open for you. Others SSC, you have all subjects, science, commerce,
Okay, so various subjects are open to you. So first of all, career guidance, career. I want to clarify. मुझे clarify करना है कि it is okay if you think अभी at 16 and 18 years of age you might have some different aspirations. Further down the journey, you might change your path also. So like I said, now education is changing. So first of all, NEP 2020 everybody has heard. NEP 2020 सुना है सबने? Yes. So here the government, the education system, they are trying to incorporate कि suppose you have already chosen commerce, we are already thinking of doing science, you are already thinking of going into some career. So and after 2 years you find कि नहीं, this is not my path, I want to go to different thing, or I want to combine the subjects. There are no boundaries like science मतलब science, commerce मतलब ये side. I want to combine certain subjects of commerce and certain subjects of science. So you are free to do it. After certain years, अभी आप लोग छोटे हो, अभी 2-3 साल के बाद आपके भाई या बहन या कजिन आएंगे, तब तक ऐसे कॉमर्स साइंस का बाउंड्रीज भी निकल जाएगा. There will be no boundaries. You can select the subjects. फॉरेन कंट्रीज़ में बहुत सारा आगे वो है कि ऑलरेडी यू हैव अ पिथोरा, so many subjects and you can choose whatever you want to write, right? In India we have some limitations, numbers, we have large numbers, so the schools or the colleges limited subjects offer करते हैं, right? So we have to choose from that. So first of all, at 16 and 18 it is completely all right, and it should be all right that you are confused. How many you are very sure what you are want to do? How many of you have decided, yes, this is my career? Yes. What you want to do? You want to become a pilot. Why you think that you want to become a pilot? What interests you in that field? General, any answer. Nothing is wrong or right answer. Just say why you want to become pilot. You are interested in? Aviation field. Very nice. Anybody else who has thought something about future, क्या करना है? So you are passionate about flying, aviation industry. So he thinks that becoming a pilot will excite. Okay, उसको excite कर रहा है कि no, I want to become pilot. I want to explore the sky. I want to explore the aviation industry. Anybody else? कुछ सोचा है? Okay, जो 12 कॉमर्स लिए है स्टूडेंट्स है, आप लोगों ने क्या सोचा है? क्या सोचा है? वही क्वेश्चंस है ना कि what next? Why should I decide my career? How to decide? What options are available and what cons and pros? What pros and cons? मैं अगर ये करूँगी तो उसमें अच्छा जॉब मिलेगा, उसमें अच्छा सैलरी मिलेगा, क्या मैं फ्यूचर है वो फील्ड का, या वो फील्ड में है कि नहीं जॉब. अभी एक बहुत क्रूड एग्जांपल देती हूँ. कोई अगर लॉयर है तो डोंट फील बैड. अगर कोई लॉयर, सम लॉयर में चार्ज फी ऑफ 500 रुपीज़ and some lawyer may charge a fee of 5 lakh rupees for their 1 hour of time. Correct? All the elders will agree with me, right? One lawyer may charge 500 or 1000 rupees for their time, and one lawyer may charge 50,000 to 5 lakh rupees for their time. So it is not any field which will pay higher, या इसमें बहुत पैसा है, इसमें नहीं है, इसके स्कोप है. वन डॉक्टर अगर हम लोग जाते हैं, वन डॉक्टर में चार्ज 200 to 500 रुपीज़, एंड वन स्पेशलिस्ट में चार्ज यू 5,000 to 10,000 रुपीज़. करेक्ट? यस, राइट. हम लोग कोई ब्यूटी पार्लर में जाते हैं, गर्ल्स, some may charge 500 rupees for the same service, some may charge 5,000 rupees for the same service. Yes, so it is not something that कि ये में अच्छा पेमेंट है या यहाँ पे जाऊँगी तो मुझे करियर अच्छा मिलेगा, ऐसा मतलब आगे फ्यूचर बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत पैसा कमा लूँगी. इट्स नॉट लाइक दैट. इट्स योर, बिकॉज सी यू हैव टू लिव विद योर करियर. अभी के जनरेशन आप लोग जल्दी बोर हो जाते हो ना. इंस्टाग्राम जनरेशन है अभी हमारा, राइट? हम लोग इंस्टाग्राम पे रील्स का समय कितना होता है? हाउ मेनी सेकेंड्स? 30 seconds, right?
अभी आपको हम लोग बोलते हैं कि हमारे ज़माने में, हमारे मेरे भी आगे ज़माने में पिक्चर्स थे, 4 घंटे का मूवी था। कोई जाएगा 4 घंटे का मूवी देखने को? यस। अभी मूवी थिएटर में लोग क्यों कम जा रहे हैं? क्योंकि 2 घंटा 3 घंटा बैठने का पेशेंस है हम लोगों में। हाउ मेनी ऑफ यू सिट फॉर अ मूवी फॉर 2 आवर्स 3 आवर्स? क्या करते हो? FF करके देखते हो? Yes, all of you will agree with me. Why this is happening? Patience, lack of patience, like lack of attention span. हमारा अटेंशन स्पैन भी जो है ना, मोबाइल और ये सब बहुत सारी चीज़ें हमारे ऊपर थोपी जा रही है। करेक्ट? यू गेट सो मच थिंग्स एट अ टाइम। आपके मम्मी या ग्रैंड मदर या ग्रैंड फादर के ज़माने में वो आजू बाजू में ही सेटिस्फाइड थे, गांव में क्या हो रहा है उसमें ही सेटिस्फाइड थे। नाउ वी नो वर्ल्ड में क्या हो रहा है, राइट? अभी ट्रम्प ने जैसे ही रात को डिसाइड किया टैरिफ, सभी जगह पे व्हाट्सएप पे आ गया। यस, जैसे ही ट्रम्प ने डाला वहाँ पे अनाउंस किया, इमीडिएटली हमारे सारे व्हाट्सएप और सब फॉरवर्ड हो गए। यस, सारे व्हाट्सएप पे क्या आ गया? उनका स्क्रीनशॉट आ गया कि उन्होंने क्या बोला, क्या किया। So we are bombarded with so many things, so many words, so many new things are coming up every day। सोचते हैं तो कुछ नया आ रहा है, करेक्ट? कितने सारे फील्ड्स है, कितने सारे स्पेशलाइजेशन है, राइट? कितनी सारी चीज़ें हैं। तो इट इज़ एक्चुअली एब्सोल्युटली ओके बिकॉज you all are just 16, 18, you all are in school or junior colleges, so it is absolutely okay to be confused, to be exploring, and therefore now little bit of boundaries मतलब वो हो रही है, धीरे धीरे आगे और भी हो जाएंगी कि यू कैन शिफ्ट योर करियर। और फ्यूचर में अगर आपने कुछ कोर्स लिया और अगर आपको कुछ लग रहा है कि आपको अभी शिफ्ट करना है, तो भी आपको कोई माइंड नहीं करना है। यू डोंट, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से दैट कि यू डोंट थिंक कि आफ्टर नाउ आई हैव पुट 2 years ऑफ साइंस एंड अभी मुझे कॉमर्स में जाना है, या मैंने 2 साल 12th HSC कॉमर्स में किया है, अभी मुझे कुछ आर्ट्स की लाइन में इंटरेस्ट आ गया है, ओके अभी मुझे साइकोलॉजी या कुछ पढ़ना है, तो नथिंग, डोंट बी अफ्रेड ऑफ लोग क्या कहेंगे, अभी कॉमर्स से साइंस, साइंस से कॉमर्स क्यों लिया, कॉमर्स से आर्ट्स क्यों लिया, डोंट बी अफ्रेड ऑफ दैट। यू नो इन अदर कंट्रीज स्टूडेंट्स स्टडी फॉर 1 year, they take break, they go to university, again do some job, explore the world, and then they again come back. So education is lifelong, so you don't need to worry कि नहीं मुझे 20 साल में ग्रेजुएशन हो जाना है, 22 साल में ग्रेजुएशन हो जाना है, 22 साल में मुझे सैलरी आ जानी चाहिए, ऐसी बाउंड्रीज मत रखो। So don't keep such boundaries, okay? So first of all we have to say कि how to decide what career options are available। ये सब बातें हो गई कि चलो it is okay, ये है वो है, बट अभी मेरा काम अभी क्या है कि I have to give you the broad picture। और सिर्फ यहाँ पे हम लोग मुंबई में खड़े हैं, मे बी यूट्यूब पे बाहर की सिटीज़ में या स्टेट्स में भी लोग देख रहे हैं, तो जनरल करियर ऑप्शंस विल रिमेन द सेम। हाँ, मुंबई की कॉलेजेस में कोई सब्जेक्ट्स अलग होंगे, कोई बाहर के स्टेट में कोई सब्जेक्ट्स थोड़े बहुत डिफरेंस हो सकते हैं, लेकिन ब्रॉडली द करियर अरीना रिमेन्स द सेम। ओके, क्लियर टू ऑल ऑफ यू? या सो नेक्स्ट स्लाइड। नाउ हम लोग स्टार्ट करेंगे थोड़ा साइंस के साथ। अभी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड विद PCB? फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो यहाँ पे मैथ्स को हमने छोड़ दिया है, करेक्ट? मैथ्स छोड़ दिया है। तो सपोज आप लोग 10th के बाद साइंस लेते हो, ओके? 10th के बाद 11th एंड 12th होता है। अभी मुंबई में है जो 11th 12th इज़ मोस्टली अटैच विद कॉलेजेस। आप दिल्ली में जाओ, किधर जाओ, तो मोस्टली 11th 12th इज़ विद द हाई स्कूल, राइट? और बाद में 12th के बाद आपको यूनिवर्सिटी या तो कॉलेज सेलेक्ट करना पड़ता है, करेक्ट? सो 11th 12th इज स्टिल यू आर इन द HSC बोर्ड, हायर सेकेंडरी certification, right? You are still in college, but now you are mature enough to understand your line, what you want to focus. So therefore हमारे पास streams होते हैं, आर्ट्स लेते हैं, कॉमर्स लेते हैं या साइंस लेते हैं। आर्ट्स के लिए अभी नया मतलब हम लोग वर्ड यूज़ कर सकते हैं ह्यूमैनिटीज़ ऑल्सो, राइट? अगर ISC बोर्ड है या CBSE बोर्ड है तो वहाँ पे आर्ट्स ना बोल के ह्यूमैनिटीज़ बोलेंगे,
कॉमर्स बोलेंगे, साइंस बोलेंगे, राइट. सो पीसीबी अगर लेते हैं तो ऑब्वियसली देर आर, जब मैथ्स नहीं अगर सिलेक्ट करना है तो मेडिकल के ऑप्शंस ओपन हैं. अभी मेडिकल में ट्रेडिशनली यू हैव BAMS मतलब आयुर्वेदिक मेडिसिन, BHMS भी है, दैट इज़ होम्योपैथी मेडिसिन, MBBS है जो एलोपैथी मेडिसिन का आप बैचलर्स कर सकते हो. MBBS स्टैंड्स फॉर व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ MBBS? From students, what is the full form of MBBS? Say it loudly. Bachelor of Science. Surgery. Yeah. So Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery. So here you are studying that. Okay. BDS stands for Bachelor of डेंटल स्टडीज़, BAMS आयुर्वेदिक मेडिसिन, BHMS होम्योपैथी. सो वो तो फील्ड है. अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव फिजियोथेरेपी, occupational therapy, speech and audio therapy. Okay, then you have regular BSc in the subjects like botany, zoology, microbiology, BSc with chemistry, BSc with okay, so you can do that. Plus you can go for nursing studies also. So most of these will require NEET. Okay, so that is known as the entrance exam. Okay, NEET exam you have to crack. It's taken at the national level. You have to score certain marks and then you get the admission according to the preference. Higher your preference, it is more chances that you might go into government aided colleges where the fees are reasonable, quite low. And if you go into the private medical colleges, which are many seats are there in private medical colleges, but fees goes very high. Okay, so higher you have a score, right, you have the chances that you might get into the government aided colleges. So it is throughout the India, you can go to any of the medical colleges, right, through NEET. Then for physiotherapy, occupational therapy, BDS, the cutoff will be little lower. You can go for veterinary science also, that is the physician or the surgery for the animals. In that also there are pet animals and wild animals. There are exotic animals and birds, because nowadays people are having various pets, and mind you, the pets, the dogs, the cats, everybody is also suffering from the similar diseases which we humans are having, right? There is a special oncology department for dogs, so especially cancer for dogs, dentists for dogs, so many fields are there for them also, and they can't express their feelings, so it is more tougher to become their doctor, because as a human being we can say कि हमें कहाँ दुख रहा है, क्या प्रॉब्लम है, क्या हो रहा है. For animals it is more tough, right? So now we have these courses, we have alternative medicines, Ayurvedic and homeopathy, right? Apart from allopathy, people are going towards back to roots, Ayurvedic medicine, homeopathy medicines, correct? BDS, dental surgery, so सबसे महंगा होता है, right? Dental treatment, once you start going to a dentist, you are going to visit them for 6 months, 8 months, correct? So that is also a very, and that requires very skill also, because it's not only mugging up, how to extract a teeth, एक human being से teeth निकालना है, वो आपका skill भी लगेगा, अपने वो भी लगेगा ना, strength भी लगेगा, correct? Mental and physical दोनों strength लगेगा. So then BSc, अगर समझो आपको नहीं जाना है, मेडिसिन में नहीं जाना है, मेडिकल फील्ड आपको अट्रैक्ट नहीं करता है, राइट? हाउ मेनी आर थिंकिंग ऑफ गोइंग फॉर मेडिकल? ऐसे सोचा है डॉक्टर बनना है, या बचपन में ऐसा था ना, मम्मी जब 3-4 साल के होते हैं तो ऐसा बोलते हैं नहीं मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगी या बनूंगा. यस, हाउ मेनी ऑफ यू हैव सेड थॉट ऑफ दैट? दिमाग में कभी नहीं आया किसके में? कोविड टाइम में अभी हम लोग ने तो देखा, हम लोग डॉक्टर्स को भगवान मान रहे थे, कितना था, तो नोबडी हैज़ थॉट ऑफ बिकमिंग अ मेडिकल प्रोफेशनल. नो,
So if you are not interested in medicine, you can go for BSc in botany. Botany में क्या होता है? Study of plants. Okay, botany involves study of plants. उसमें भी आप स्पेशलाइजेशन करके, सी प्लांट्स में भी आप कितनी सारी फील्ड्स होती है, लैंडस्केपिंग से लेके हॉर्टिकल्चर से लेके रिसर्च से लेके बहुत सारी चीज़ें आप बीएससी विद बॉटनी में भी कर सकते हैं. बीएससी इन माइक्रोबायोलॉजी. ओके, वी हैव माइक्रोब्स इन आवर बॉडी अराउंड अस. सो माइक्रोबायोलॉजी आपको अलाइड, अपार्ट फ्रॉम मेडिकल अलाइड फील्ड में भी माइक्रोबायोलॉजी, रिसर्च में भी माइक्रोबायोलॉजी विल बी वेरी यूजफुल. यू कैन स्टडी माइक्रोबायोलॉजी एंड गो एंड डेवलप न्यू medicines also. Zoology means study of animals. Okay, veterinary doctors will do what? They will give medicine to the animals. यहाँ पे zoology में क्या है? Study of animals, but it involves marine, land, everything. So if you are interested in ocean, मतलब fishes, that oceanography is there. If you are interested in similar animals, so zoology also has a vast field, right from reptile से लेके ocean के fishes से लेके animal से लेके bird से लेके हर एक के बारे में study अलग अलग हो सकती है. Even some people might be interested in wildlife photography, right? So sometimes that study of zoology also helps them to divert them towards the photography and the wildlife conservation also. Then chemistry हर एक चीज़ में चाहिए अभी हमें, right? Chemistry is required everywhere. Suppose अभी ये wall का paint है, ultimately what is it? Chemical, some mixture of chemical. New materials are coming in paint also. रोज बोलते हैं ना, कोई ऐड आएगी नेरोलेक पेंट की कि अभी बारिश में ये नहीं होगा वो नहीं होगा. वो कैसे पॉसिबल है? बाय रिसर्च की न्यू केमिकल्स आर बीइंग डेवलप. अभी लाइक हमारी कॉलेज में केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के टीचर्स के पास एक टीचर है, उनके पास बहुत सारे पेटेंट्स हैं, राइट? तो वो क्या करते हैं कि उनका पेटेंट जो है वो इंडस्ट्री में काम आएगा, और वो इंडस्ट्री वाले अगर वो एक्सेप्ट करेंगे, उसका मैन्युफैक्चरिंग शुरू करेंगे, so then they can earn in lakhs. So that patents are useful. By in chemistry so many things are open, right from furniture में हर एक चीज़ में केमिकल चाहिए. एडेसिव है तो वो क्या है? केमिकल है, राइट? हम सैनिटाइजर यूज़ करते थे तो वो क्या था? अल्टीमेटली केमिकल है. सोप इंडस्ट्री केमिकल है, परफ्यूम इंडस्ट्री केमिकल्स है. अल्टीमेटली इट्स अ मिक्सचर ऑफ ऑल. सो मेनी. फूड में भी सिंथेटिक कलर्स हैं. What is that? Ultimately mixture of all these chemistry. So chemistry also opens you. Chemistry में आप MSc करो, रिसर्च करो. हमारे यहाँ UDCT, आप लोगों ने ICT सबने देखा है? इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी. अ ब्यूटीफुल कैंपस, और इंडिया का सबसे अच्छा फंडेड कैंपस है, बिकॉज वहाँ के स्टूडेंट के पास इतने सारे पेटेंट्स है. इंडस्ट्री की उनको ग्रांट मिलती है बिकॉज उनके रिसर्च इंडस्ट्री में अप्लाई होते हैं. सो ऐसा नहीं है कि अरे कॉमर्स वाले ही पैसा कमाते हैं, साइंस वाले, रिसर्च वाले पैसा नहीं कमाएंगे. जनरली कैसा होता है? रिसर्च साइंटिस्ट मतलब वो बहुत ही पढ़ाकू किस्म के लोग हैं, ज़्यादा पैसों में इंटरेस्टेड नहीं है. ऐसा नहीं है. रिसर्च में भी आजकल बहुत आप इंडस्ट्री के साथ टाई अप करो, पेटेंट्स लो, नया डेवलप करो. जैसे सबसे बड़ा एग्जाम्पल दूंगी एक मूवी का. कौन से मूवी में इसका इम्पोर्टेंस दिया है? एक मूवी, यस, लाउडली से लाउडली, 3 इडियट्स सबने देखी है या? तो उसमें कौन है? उसका कैरेक्टर का नाम क्या है? आमिर खान के कैरेक्टर का नाम क्या है? रैंचो, या? तो वो क्या कर रहा है? वो क्या दिखा रहे हैं कि चतुर जो डिग्री लेके अमेरिका की बड़ी मल्टीनेशनल की यूएसए की फर्म में काम कर रहा है, लेकिन वो किसके पीछे भाग रहा है? फुंगशु वांगड़ू के पीछे भाग रहा है, या रैंचो के पीछे भाग रहा है. वाई? बिकॉज रैंचो ने अपना नॉलेज अप्लाई करके उसके पास इतनी पैटेंट्स थी. तो एक पैटेंट भले वो काम कर रहा है स्कूल टीचर का, लेकिन उसके पैटेंट से वो करोड़ों रुपए कमा सक रहा है, राइट? सो दैट इज़ ऑल्सो इंटरेस्टिंग फील्ड. ऐसा नहीं है कि साइंस लेना है मतलब इंजीनियर या मेडिकल ही करना है, करेक्ट?
द नोशन ऑफ साइंस इज टू थिंग्स, ऐसा नहीं है कि इंजीनियरिंग या मेडिकल, देयर कैन बी सो मेनी लाइन्स, माइक्रोबायोलॉजी, केमिस्ट्री, सब में रिसर्च के लिए बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ है। फार्मेसी से लेके बहुत सारी रिसर्च फील्ड्स आते हैं, और नाउडेज रिसर्च ज़्यादा काम आएगा क्योंकि नॉलेज अभी अपने पास एआई है, बराबर। सब लोग प्रोजेक्ट बनाने के लिए एआई यूज़ करते हो। हाउ मेनी आर यूजिंग फॉर एआई? एआई से यूज़ किया, क्या किया एआई का, कैसे यूज़ किया इस्तेमाल? तो आपको जो भी नॉलेज है वो आपको टिप ऑफ द टंग में, गूगल तो था ही था, अभी गूगल के बाद एआई आ गया तो और स्पेसिफिक नॉलेज आपको मिल जाता है। फिर आपके प्रेजेंटेशन भी बन जाते हैं, आपके प्रोजेक्ट्स भी बन जाते हैं एआई से। सो ये सब टेक्नोलॉजी आ गई, तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा, उसके और आगे सोचना पड़ेगा। यू हैव टू थिंक बियॉन्ड दैट। वो बियॉन्ड दैट कभी पॉसिबल होगा जब रिसर्च ओरिएंटेड हमारा दिमाग रहेगा। इंक्विजिटिवनेस, सी मैं आगे आऊँगी एनईपी की स्लाइड पे कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में क्यों लोग प्रेफर करते जाना। बेसिक हमारी यूनिवर्सिटीज़ और फॉरेन यूनिवर्सिटी का मेजर डिफरेंस क्या होता है? हाँ, एक्सपोजर देते हैं, और एक्सपोजर मतलब अलग अलग चीज़ों के बारे में आपको पता चलता है। और क्या होता है? हाँ, असाइनमेंट्स आर बेस्ड ऑन रिसर्च। हमारे यहाँ थोड़ा, क्योंकि क्लास स्ट्रेंथ, हमारे भी कंस्ट्रेंट क्या होता है, हमारे यहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है, हमारी क्लास स्ट्रेंथ बड़ी है। बीइंग मैं भी टीचिंग फैकल्टी में हूँ लास्ट 25 साल से, हमारे यहाँ क्या होता है, हमको असाइनमेंट देने हैं लेकिन बहुत बड़े क्लास साइज होते हैं, राइट, 100 एंड ऊपर स्टूडेंट्स होते हैं, तो हमारे रिस्ट्रिक्शंस हो जाते हैं गिविंग अटेंशन और गिविंग हायर ऑर्डर थिंकिंग असाइनमेंट्स। सी हायर ऑर्डर थिंकिंग असाइनमेंट मतलब क्या, कि आपको जो थिंक करने के लिए मजबूर करे। मैं एक छोटा सा असाइनमेंट दूंगी जो आपको एआई में मिल जाएगा, आप लिख के लेके आओगे, सबमिट कर दोगे कल, सिंपल, आपने कोई दिमाग ज़्यादा यूज़ नहीं किया। बट फॉरेन यूनिवर्सिटी में दे आर वेरी स्ट्रिक्ट ऑन प्लेजरिज्म, मतलब उनका सॉफ्टवेयर ही होता है, देख लेते हैं कि आपका असाइनमेंट आपने गूगल से कॉपी किया नहीं किया है, प्लस दे गिव यू हायर ऑर्डर असाइनमेंट एंड द एम्फेसिस इज ऑन सेल्फ लर्निंग। टीचर विल टीच यू कंसेप्ट इन अ वेरी स्मॉल वे, कंसेप्ट बता देंगे, बाद में आप अभी समझो यहाँ पे 50 लोग बैठे हैं, 50 लोग वो कंसेप्ट के ऊपर अलग अलग अपना रिसर्च लेके आएंगे। सो देयर विल बी इनपुट्स एंड दैट इनपुट्स विल बी डिस्कस्ड इन द क्लास। सो जो नॉलेज आपको एआई या गूगल पे नहीं है वो आपको वहाँ पे मिल रहा है। अंडरस्टूड? नेक्स्ट, अभी पीसीएम, जब यहाँ पे मैथ्स आता है, हाउ मेनी ऑफ यू लाइक मैथ्स? किसको मैथ्स पसंद है? आपको मैथ्स पसंद होना चाहिए, क्योंकि एविएशन में अगर थोड़ा भी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएगा तो आपका प्लेन कहाँ चला जाएगा, करेक्ट? सो मैथ्स आपको पसंद होना चाहिए। अगर आपको मैथ्स पसंद है और आप पीसीएम लेते हो, राइट, सो यू हैव बीई, बीटेक, बीआर्क, वो तो है ही, बी मतलब बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। अगर आपको अपनी इंडिया की टॉप कॉलेज लाइक आईआईटी में जाना है तो आपको जेईई देना है, राइट, अदरवाइज आपको अगर महाराष्ट्र की कॉलेज में लेना है एडमिशन तो आपको एमएचसीटी देना है, करेक्ट, ऑल ऑफ यू आर वेरी अवेयर। फिर आपको बीटेक, जैसे मैंने आईसीटी का एग्जाम्पल दिया, आईसीटी है तो वहाँ पे बीटेक कोर्सेज है इन केमिकल टेक्नोलॉजी एंड अदर कोर्सेज। फिर आपको आर्किटेक्चर, इट्स ऑल्सो वेरी ग्रोइंग फील्ड, बिकॉज आर्किटेक्चर सिर्फ बिल्डिंग बनाने के लिए नहीं, बिल्डिंग के छोटे छोटे फील्ड्स होते हैं, गार्डनिंग के लिए भी लैंडस्केप आर्किटेक्चर होता है, बिल्डिंग में भी हर एक चीज़ के लिए आर्किटेक्चर चाहिए। आपको गवर्नमेंट लाइजनिंग और प्लान पास कराने के लिए भी आर्किटेक्ट चाहिए, एक्चुअल बनाने के लिए भी आर्किटेक्ट चाहिए, इंटीरियर करने के लिए भी आर्किटेक्ट चाहिए, प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग में भी आर्किटेक्चर चाहिए, इको फ्रेंडली डिज़ाइनिंग के लिए आपको गांव में घर बनाना है, सो मेनी थिंग्स आर्किटेक्चर कैन डू। मतलब आर्किटेक्चर की भी फील्ड में बहुत सारी स्पेशलाइजेशन है, लेकिन वो भी मैथ्स और प्रिसाइज कैलकुलेशन। अभी जैसे फॉर एग्जांपल बहुत जोक चल रहा है, शायद ऑल ऑफ यू अवेयर, वो अंधेरी का ब्रिज, गोखले ब्रिज, क्या जोक चल रहा है? अलाइनमेंट का इश्यू हो गया ना, तो इट्स अ बिग फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ
engineers and architects. Whoever is working, they could not align the bridge. So it's a big mistake. So यहाँ पे आपका मैथ्स, प्रिसिशन ये सब है, तो आप बहुत सारे वंडर्स कर सकते हो इन आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग में भी बहुत सारे फील्ड है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, केमिकल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, मैकेट्रॉनिक्स, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर इंजीनियर. कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर भी अलग है, बिकॉज कंप्यूटर विल इन्वॉल्व हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर का अलग होगा. आईटी इन्वॉल्व सॉफ्टवेयर एंड अदर टेलीकम्युनिकेशन ऑल्सो. सो आईटी भी है, सॉफ्टवेयर भी है, कंप्यूटर भी है, केमिकल भी है, ओल्ड फील्ड्स भी है, राइट. एविएशन में भी है, बहुत सारी फील्ड आपके लिए ओपन होती है इन बीई, बीटेक. फिर गवर्नमेंट, डिफेंस इंडस्ट्री में शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है. अगर आप बीई करते हो तो यू कैन बी एम्प्लॉयड एज एन इंजीनियर इन आर्मी, नेवी, पायलट एंड शॉर्ट सर्विस कमीशन में भी उनको जो टेक्निकल फील्ड वाले लोग बहुत चाहिए, लाइक इंजीनियर्स एंड आर्किटेक्ट्स. BCA कंप्यूटर एप्लीकेशन, BCA कंप्यूटर एप्लीकेशन. डेटा के लिए भी मैं आऊँगी, वो कॉमर्स के लिए ओपन है और साइंस के लिए भी ओपन है. आजकल क्या ज़माना है, डेटा एनालिटिक्स, वर्ड बहुत सुना होगा, राइट. व्हाट इज़ डेटा तो बहुत मिला. अभी समझो आप लोगों ने गूगल फॉर्म भरा होगा, यस, आप लोग सबने गूगल फॉर्म भरा था यहाँ आने से पहले. तो डेटा आ गया एड्यूसिक वालों के पास, तो आपने जो क्वेश्चंस पूछे होंगे उनके पास वो डेटा आया. वो डेटा से उन्होंने क्या किया कि आपको क्या चाहिए, स्टूडेंट कम्युनिटी को क्या चाहिए, तो उस हिसाब से दे विल ऑर्गेनाइज दोज प्रोग्राम्स, राइट. सो दैट इज दे आर डूइंग डेटा एनालिसिस ऑफ अ स्मॉल सैम्पल, राइट. 50 लोगों ने रजिस्टर किया, 100 लोगों ने रजिस्टर किया, तो इट इज़ ईजियर फॉर यू टू एनालाइज द डेटा एंड अप्लाई कि चलो हमारी कम्युनिटी है, हमारे बच्चों को ये सारे क्वेश्चंस है, ऐसे प्रोग्राम देने हैं, वी विल वर्क ऑन दैट अ सिंपल थिंग. बट अभी आजकल आप मोबाइल पे कुछ सोचते हो और वही ऐड मोबाइल पे दिखती है ना, यस और नो. आप सोचते हो ये अंतर्ज्ञानी है क्या, सिर्फ मैंने बात किया मेरे फ्रेंड के साथ और वही ऐड दिख रही है. मैं कुछ नया मोबाइल के बारे में सोच रहा हूँ और वही मोबाइल की ऐड दिख गई, यस. कोई नए ब्रांड के जूतों के बारे में सोचा और वो ऐड दिख गई. फैशन में कुछ कपड़ा देखा और वही ऐड दिखेगी. यस, ऑल ऑफ यू विद अग्री विद मी. हाउ इट इज़ पॉसिबल? दिस इज डेटा माइनिंग, डेटा एनालिसिस, कि जो हमारा डेटा है मोबाइल में, हम लोग क्या सर्च कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कितनी देर कर रहे हैं, क्या स्वाइप कर रहे हैं. एक रील के ऊपर हम लोग 5 सेकेंड के स्वाइप कर रहे हैं कि पूरा 15 सेकेंड में 2-3 बार देख रहे हैं, वो भी दिखाई दे रहा है कि कौन से हमें क्या पसंद है. हम जो देखेंगे वही कंटेंट हमें आता है. आप समझो पंजाबी कंटेंट देखोगे तो आपको पंजाबी कंटेंट ही आएगा. मैं मेरे इंस्टाग्राम पे पंजाबी कंटेंट नहीं देख रही हूँ तो मुझे वो कंटेंट नहीं आएगा, करेक्ट. सो दिस इज ऑल कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड डेटा विच हैज़ अ वाइड स्कोप, राइट. बट ऑब्वियसली थोड़ा मैथ्स, चैट्स, थोड़ा एक्सेल, उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए. नेक्स्ट स्लाइड. या फिर अभी आपने दोनों लिया, मैथ्स भी लिया और बायोलॉजी भी लिया. यू वांट टू गो, सो देयर ऑल्सो वेरियस फील्ड, लाइक होटल मैनेजमेंट है, वेरी गुड फील्ड. होटल मैनेजमेंट में भी बहुत सारे फील्ड्स ओपन होते हैं. फिर होटल मैनेजमेंट है, फार्मेसी है, बायोटेक्नोलॉजी है, एग्रीकल्चर है, डेयरी टेक्नोलॉजी है. सो मेनी कोर्सेज आर ओपन इफ़ यू टेक, मतलब आइदर यू टेक PCM और PCB. बट साइंस के अलाइड में आप ये सारे, सिर्फ जरूरी नहीं कि इंजीनियर बनो या डॉक्टर बनो. यू कैन गो फॉर एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, यू कैन गो फॉर डेयरी फार्मिंग, यू कैन गो फॉर होटल मैनेजमेंट, यू कैन गो फॉर फार्मेसी, बायो इंजीनियरिंग, बायो इन्फॉर्मेटिक्स. ये सारे बहुत सारे स्पेशलाइज फील्ड है. अगर आपको वो फील्ड में इंटरेस्ट है, सी जो भी आपको करियर गाइडेंस होगा, अभी करियर गाइडेंस मैं सबके लिए बोल रही हूँ, करेक्ट. अभी किसको इसमें इंटरेस्ट है तो ये एक जनरल आइडिया है. आगे आपको क्या करना है, अगर वो फील्ड में आपको इंटरेस्ट है, देन यू हैव टू गो एंड आजू बाजू ढूंढो कि ये फील्ड में कौन लोग हैं, उनके साथ बातचीत करो कि उनका क्या काम होता है, उन्होंने क्या किया था कोर्स, उन्होंने कैसे आगे बढ़ा वो फील्ड में, और उनके फील्ड में वो उनका एरिया ऑफ वर्क क्या है, कैसे काम करते हैं. सो यू विल गेट द एक्चुअल आइडिया. आपके आजू बाजू नज़र दौड़ाओ, नेबर्स है, एल्डर्स है,
आजू बाजू लोग हैं जो ये फील्ड में काम करते हैं, जो भी फील्ड आपको पसंद आ रहा है, क्योंकि सेमिनार्स ये सब आपको जनरल आइडियाज़ दे रहे हैं कि ये फील्ड है। अभी आपको 1-on-1 भी कोई काउंसलर मिलेगा, लेकिन जो एक्चुअल वो फील्ड में काम करने वाले लोग हैं उनसे बातें करो, उनसे कनेक्ट बढ़ाओ, उनसे नेटवर्किंग करो कि एक्चुअल वो क्या काम कर रहे हैं। उनसे बातचीत करोगे तो आपका भी क्लैरिटी आएगा कि मुझे वो तरीके का काम और वो तरीके का करियर पसंद आएगा कि नहीं आएगा, बिकॉज यू हैव टू लिव। अगर मैंने ऐसा करियर चूज़ किया जिसमें मुझे कंटाला आ रहा है, तो आई विल बी ड्रैगिंग माई सेल्फ होल लाइफ, ज़बरदस्ती काम पे जाना है, उठना है, अरे सुबह में, तो आई विल बी नॉट हैप्पी विद इन, देन इट इज़ नो यूज़ दैट आई एम बीइंग पेड मोर। मुझे पैसा अच्छा मिलता होगा कोई जॉब में, लेकिन अगर वो जॉब में मैं खुश ही नहीं हूँ, मुझे सुबह में उठ के वो जॉब पे जाने का मन ही नहीं हो रहा है, आई एम नॉट मोटिवेटेड इनफ, then it is of no use, right? Right now in generation what I have observed working with the students, that motivation का थोड़ा lacking है। सुबह में उठने के लिए मोटिवेशन बहुत ज़रूरी होता है ना। मम्मी कितनी बार उठाती है तब उठते हो? हाँ, सुबह में उठने के लिए मोटिवेशन। फिर अभी मेरे पर भी अप्लाई होता है, कल से मैं एक्सरसाइज शुरू करूँगी, कल से मैं वेट लॉस करूँगी, सब मोटिवेशन सब करते हैं लेकिन करते नहीं है, बिकॉज लैक ऑफ मोटिवेशन। लेकिन वो मोटिवेशन कब आएगा? जब हमें वो चीज़ में इंटरेस्ट है। सपोज मुझे कोई चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है तो मैं बोलूँगी अरे संडे को मैं क्यों जाऊँगी, बट आई लाइक टू टॉक विद स्टूडेंट्स, तो मैं संडे को भी आ गई, बिकॉज आई विल बी इंटरेस्टेड एंड आई विल बी, मुझे भी अच्छा लगेगा। सो मेंटली आई एम सेटिस्फाइड, सो आई विल डू दैट वर्क हैप्पीली ऑन संडेज ऑल्सो। नेक्स्ट स्लाइड। या अभी थोड़ा ये स्लाइड में थोड़ा डोंट वरी, आर्ट्स की तरफ जाते हैं, ह्यूमैनिटीज़ में। ओके, ह्यूमैनिटीज़ में जाते हैं कि समझो आप लोगों ने 12th आर्ट्स लिया, लैंग्वेज लिया, करेक्ट, लैंग्वेज लिया। अभी आपको मैं 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स को बोल देती हूँ कि अभी आपको फर्स्ट ईयर में हिंदी या मराठी एक इंडिया की वर्नैक्युलर लैंग्वेज आएगा 6 महीने के लिए, एक टर्म के लिए, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। जैसे आप फ्रेंच या जर्मन में पढ़ाई में इंटरेस्ट रखते हो, ऐसे आपको हिंदी या मराठी, बिकॉज वी स्टे इन मुंबई इसलिए मैं मराठी बोल रही हूँ, तो लोकल स्टेट लैंग्वेज एंड अ नेशनल लेवल लैंग्वेज। तो इंग्लिश तो सीखते ही है, अपार्ट फ्रॉम दैट हिंदी, मराठी, कर्नाटक में रह रहे हो, जिधर भी रह रहे हो, जो स्टेट की जो लैंग्वेज होगी वो गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करिए, बिकॉज इंडियन एथोस, इंडियन नॉलेज सिस्टम हैज़ टू बी इनकलकेटेड इन स्टूडेंट्स। ओके, सो अगर आप आर्ट्स लेते हो, आपको इंटरेस्ट है लैंग्वेज बोलने में, लिखने में, तो जर्नलिज्म, राइट। और अभी तो कैसा है ना, जर्नलिज्म के लिए आपको कोई बड़े बड़े न्यूज़पेपर भी ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना यूट्यूब चैनल शुरू कर सकते हो। आप अपने गली के न्यूज़, अभी एक मतलब मैं अभी ऐसे ही मैंने इंस्टाग्राम पे 2-3 दिन पहले फॉलो किया गली न्यूज़, कि वो सिर्फ मुंबई के न्यूज़ देते हैं, करेक्ट। सो ज़रूरी भी नहीं है, लाइक आई ना फॉलो Faye D'Souza, so she only has her own channel and she talks and analyzes about the world and current affairs. So you need not go to the newspaper and apply. आप खुद self employed बन सकते हो. You can start your own journalism. So journalism में भी TV journalism, YouTube है, print है, बहुत सारी field open है. So आप 12th के बाद mass media, BMM कर सकते हो, which is a little bit considered as humanities or a arts field. देन सो बैचलर ऑफ मास मीडिया आप कर सकते हो। फिर साइकोलॉजिस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट फील्ड, मेंटल हेल्थ। आए दिन हम लोग देख रहे हैं सुसाइड के केसेस बढ़ रहे हैं, डिप्रेशन के केसेस बढ़ रहे हैं, राइट। सो ऐसा नहीं था कि ये नए ज़माने की बीमारी है, इट्स नॉट लाइक दैट। पहले के ज़माने में लोग एक्सप्रेस नहीं करते थे। इन अर्लियर टाइम्स देयर वर नो एक्सप्रेशन ऑफ द फीलिंग। करना है मतलब करना है, जो बड़े लोगों ने कहे गए या धर्म में कहे गए ऐसे करना है वो करना है, कोई क्वेश्चंस नहीं पूछता था। अभी का जनरेशन क्वेश्चन पूछेगा, वाई, मुझे नहीं अच्छा लग रहा तो मैं क्यों करूं, मुझे लॉजिक समझाओ। सो क्वेश्चनिंग एटीट्यूड हुआ है, इसलिए हमारी मेंटल हेल्थ भी हम लोग बाहर दिखाते हैं कि हम डिप्रेशन में, तो डिप्रेशन में हम लोग नहीं हैं। तो इसके लिए थेरेपी पे जाना कोई ऐसा नहीं एबनॉर्मल नहीं है। एवरीबडी नीड्स थेरेपी एट सम और दी अदर टाइम। मोस्टली आई मे बी रॉन्ग, बहुत माफ़ी चाहती हूँ। आप लोगों में सत्संग होता है, करेक्ट। सो सत्संग से आपको मेंटल पीस मिलती है,
You feel nice and peaceful when you come to गुरुद्वारा. गुरु जी के चरणों में जब गुरुद्वारा में आते हो तो आपका ऑरा चेंज हो जाता है. So it's a way of, it's a part of therapy. It's a therapy which we are getting when we come to any religious place. Bhajan, Kirtan, Satsang, these were the olden methods of psychology. अभी ये न्यू मेथड्स है, तो न्यू जनरेशन के लिए आपको साइकोलॉजी में भी बहुत सारी फील्ड्स ओपन है. सोशियोलॉजी, social field, social worker, right? MSW, you can do bachelor in social work, you can do masters in social work. और ऐसा नहीं है, माइंड यू सोशल वर्क में भी अच्छे जॉब्स मिलते हैं. बिकॉज यू मस्ट हैव हर्ड CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. CSR फंड के बारे में सुना है. CSR फंड होते हैं, एवरी कंपनी नीड टू कीप असाइड सर्टन अमाउंट फॉर CSR. तो आजकल NGO भी प्रोफेशनली मैनेज्ड होते हैं. NGOs आर ऑल्सो मैनेज, और मैनेजमेंट के लिए उधर प्रोफेशनल टीम अपॉइंट की जाती है. पहले का समाज सेवा था, गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद में से समाज सेवा होती थी. अभी प्रोफेशनल NGOs है जहाँ पे आप एज अ सोशल वर्कर यू कैन ज्वाइन एंड यू कैन गेट अ सैलरी ऑल्सो एंड सेटिस्फैक्शन ऑल्सो ऑफ डूइंग द वर्क. नहीं, आगे की स्लाइड, अर्लियर स्लाइड. हाँ, सोशल वर्कर हो गया, सॉरी. नेक्स्ट, पॉलिटिकल साइंस, वेरी इंपॉर्टेंट फील्ड फॉर गिविंग UPSC MPSC एग्जाम्स. आपको अगर गवर्नमेंट एग्ज़ाम देनी है, आपको IAS बनना है, गवर्नमेंट सर्विस करनी है, राइट? तो ये सारे जो आर्ट्स के सब्जेक्ट्स हैं, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, लैंग्वेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ऐसा नहीं है कि दूसरे फील्ड में भी आप UPSC MPSC एग्ज़ाम कोई भी ग्रेजुएट दे सकता है, लेकिन ऑब्वियसली व्हेन यू क्रैक द इंटरव्यूज़ ऑफ UPSC MPSC, इफ़ यू हैव पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट का बैकग्राउंड है, आपके पास हिस्ट्री का बैकग्राउंड है, तो ऑब्वियसली यू कैन अंडरस्टैंड द इंडिया एंड द लैंग्वेज, मतलब द इंटरव्यूज़ यू कैन क्रैक बेटर. सो UPSC कोई देना चाह रहा है, कोई IAS ऑफिसर या गवर्नमेंट ऑफिसर कोई बनना चाह रहा है फ्यूचर में, नहीं पसंद है, मस्त गवर्नमेंट की गाड़ी में, गवर्नमेंट के लेवल का दैट अथॉरिटी एंड दैट इज ऑल्सो डिफरेंट ऑरा. येस और नो? येस. सो स्टूडेंट्स शुड थिंक ऑन दैट जनरेशन ऑल्सो, दैट लाइन ऑल्सो, कि ज़रूरी नहीं है कि आप यही लाइन लो. गवर्नमेंट ऑल्सो नीड्स ना यंगस्टर्स. अगर आप अपनी गवर्नमेंट है, इट्स अ डेमोक्रेसी, वी हैव टू रन द गवर्नमेंट, सो वी हैव टू बी पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट. आइदर पॉलिटिकल ज्वाइन कर सकते हो या तो आप एडमिनिस्ट्रेशन में ज्वाइन हो सकते हो, करेक्ट? लॉ इज ऑल्सो, BSc इन लॉ भी होता है, BA LLB भी होता है. बैचलर ऑफ लीगल साइंसेज, BLS, सो इट कैन बी अ साइंस एग्जाम और इट कैन बी BA LLB ऑल्सो. सो 12th के बाद 5 years का है और ग्रेजुएशन के बाद 3 साल का है. ग्रेजुएशन के बाद, कोई भी ग्रेजुएशन के बाद करो लॉ तो LLB कहते हैं 3 साल का. अगर 12th के बाद अगर करो तो आपको क्लैट एग्ज़ाम दे के या तो BLS डिग्री देती है कोई यूनिवर्सिटी, कोई कॉलेज आपको BLS बैचलर ऑफ लीगल साइंस डिग्री देती है, और कोई यूनिवर्सिटी आपको BA LLB देती है, बैचलर ऑफ आर्ट्स विद लॉ. परफॉर्मिंग एंड arts, if you are interested in drawing, painting, if you are interested in sculpture, if you are interested in dance, नालंदा विद्यापीठ है जो डांस में आप बैचलर्स कर सकते हो, मास्टर्स कर सकते हो डांस में. आप JJ स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर है, वन ऑफ द बेस्ट स्कूल इन इंडिया, मुंबई में है JJ स्कूल, वहाँ पे आप आर्ट के कोर्स कर सकते हो, स्कल्पचर कर सकते हो, करेक्ट? रिनाउंड आर्टिस्ट के पेंटिंग कितने में जाते हैं? लाखों करोड़ों में जाते हैं. जो कलेक्टर्स होते हैं वो रिनाउंड पेंटिंग्स लाखों करोड़ों में खरीदते हैं. बड़े बड़े घरों में लोग पेंटिंग के लिए, स्कल्पचर बनाने के लिए, काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल हम लोग जाते हो, काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल, फोटोज़ के लिए, इंस्टा के लिए. तो ये सब कितनी ब्यूटीफुली आर्ट इंस्टॉलेशन किए हैं. दीज आर ऑल स्टूडेंट्स ऑफ मतलब फाइन आर्ट्स. नेक्स्ट आर्कियोलॉजी, हिस्ट्री. अभी आज का एक सब्जेक्ट है हिस्ट्री, तो
तो हिस्ट्री जैसे आपको यूपीएससी एमपीएससी में काम आएगा, ऐसे आपको आर्कियोलॉजी भी बन सकते हो, प्रिजर्वेशन ऑफ ओल्ड बिल्डिंग्स, प्रिजर्वेशन ऑफ आर्किटेक्चर, उसमें भी जा सकते हो। फिर डिज़ाइनिंग, आपको एकदम मैथ्स पसंद नहीं है, आर्किटेक्चर में नहीं जाना है, तो इंटीरियर डिज़ाइनिंग विच इज़ अ बैलेंस ऑफ आर्ट एंड पैसा भी अच्छा है इंटीरियर डिज़ाइनिंग में, इट्स अ वेरी गुड फील्ड विद इंटरेस्टिंग फील्ड ऑफ वर्क ऑल्सो। एजुकेशन, obviously if you want to become a English teacher, you become a MA with English, हिंदी का टीचर, हिंदी साहित्य में इंटरेस्ट है, इंग्लिश लिटरेचर में इंटरेस्ट है, you can become a teacher, you can become a professor also। लैंग्वेज के लिए ट्रांसलेटर, अभी आपको अगर मैं अभी बोलूँ कोई वर्ड का स्पेलिंग दो तो आप क्या करोगे, गूगल करोगे या AI के करोगे? देखिए AI में वो लैंग्वेज किसने फिट इन किया। मैं अगर बोलूँ आप लोगों को कि ये वर्ड देती हूँ, आप ट्रांसलेट करो, हिंदी में, पंजाबी में, कोई भी लैंग्वेज आप ट्रांसलेट कर पाओगे? यस और नो? पंजाबी के भी आते हैं ना? हाँ, विद द हेल्प ऑफ अ टूल। मतलब मैं अगर कोई भी वर्ड बोलूँ तो आप विद मोबाइल पंजाबी में ट्रांसफर करोगे? यस। लेकिन कंप्यूटर को पंजाबी आता है, तो हु हैज़ पुट दैट वर्ड्स इन कंप्यूटर? सम लैंग्वेज पर्सन who is working with the tech people. So connecting of technology with languages, because see, the basic is language and maths. दूसरी सारी बिल्डिंग बोलते हैं ना, पिरामिड होता है ना, तो लैंग्वेज और मैथ्स के ऊपर पूरी बिल्डिंग बनी है। योर लैंग्वेजेस आर द बेसिक एंड द मैथ्स, उसके ऊपर फिर दूसरे सारे अप्लाइड सब्जेक्ट्स आते हैं। नेक्स्ट, अभी आते हैं कॉमर्स। सबसे पॉपुलर या ज़्यादा लोग शायद कॉमर्स में हैं, तो कॉमर्स क्यों लेना चाहिए? बिकॉज पॉपुलर तो है ही, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज़ है। फिर यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है कि आप खुद का बिजनेस भी कर सकते हो, प्रोफेशनल्स भी बन सकते हो एंड जॉब भी कर सकते हो। तो यू हैव अपॉर्चुनिटी टू डू अ कॉर्पोरेट जॉब, यू कैन बिकम अ प्रोफेशनल लाइक CA, CS, you can start your own enterprise also, right? Next, so कॉमर्स का जो करियर पाथ है वो कैसा रहेगा? आप 12th कॉमर्स से करो या साइंस से करो, HSC करो, ISC करो, CBSE करो या इंटरनेशनल बोर्ड से करो। आफ्टर दैट यू कैन गो टू ऑल दीज कोर्सेज। अभी ये सब नाम है, राइट? बहुत सारे एब्रीविएशंस हैं, ये कुछ नहीं है। जैसे बीकॉम का फुल फॉर्म सबको पता है, बैचलर ऑफ कॉमर्स। अभी बैफ, तो बैफ इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ बैचलर ऑफ कॉमर्स इन स्पेशलाइजेशन विद अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। सो बैफ, बैचलर ऑफ कॉमर्स इन विद स्पेशलाइजेशन विद बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, सो इट बिकम्स BBI, बैचलर ऑफ कॉमर्स विद स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंशियल मार्केट्स, तो इट बिकम्स BFM, राइट? तो फाइनेंशियल मार्केट्स मतलब क्या? What do you mean by financial markets? Stock market, and other than stock market, there are debt market, right? Commercial paper, so many things are there in finance field. So वो पूरा स्टडी आपको financial markets में मिलेगा। BMS, मैनेजमेंट स्टडी, कोई BMS बोलता है, BMS बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडी, कोई बोलता है, कोई कॉलेज बोलेगा BBA, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन बोलेंगे, करेक्ट? सो नाम थोड़ा थोड़ा अलग देते हैं। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, MBA, मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन तो MBA, मास्टर्स इन मैनेजमेंट स्टडी तो MMS, राइट? अब्रॉड MBA बोला जाता है। इंडिया में स्पेसिफिकली मुंबई में जो मास्टर्स इन मैनेजमेंट कोर्स है उसको MMS कहते हैं। और PG डिप्लोमा भी रहते हैं। कई सारी जो बड़ी बड़ी कॉलेजेस है, कि समझो अभी वेलिंगकर इंस्टीट्यूट है यहाँ पे माटुंगा में, तो जो MMS कोर्स में उसका कट ऑफ बहुत हाई होता है, तो वो PG डिप्लोमा ऑफर करते हैं। वही कंटेंट, वही सिलेबस, लेकिन आपको थोड़ी कम फीस में और कम परसेंटेज में मिल जाएगा, लेकिन आपको डिग्री क्या मिलेगी? पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा मिलेगा। इंस्टेड ऑफ मास्टर्स आपको मिलेगा डिग्री पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा। लेकिन आपका, जैसे रांचो के पास से नॉलेज कोई नहीं छीन सकता है, वैसे आपका नॉलेज तो आपसे कोई नहीं छीन पाएगा, भले आपको डिग्री कोई भी मिले। और ऑब्वियसली अगर आप पहले ग्रेजुएशन करो, मास्टर्स करो,
फिर अगर चाहे तो PhD तक पहुंच सकते हो, लेकिन साइड बाय साइड, क्योंकि कॉमर्स में कैसा होता है, थोड़ा स्टडीज़ का आज कम होता है, आपकी कॉलेज 5 घंटे में ख़त्म हो जाती है, राइट। तो अपने पास 24 घंटे है, 10 घंटे और माइनस कर दो फिर भी 6-7 घंटे है। सो यू कैन डू प्रोफेशनल कोर्सेज एंड यू कैन टॉप अप योर डिग्री विथ CA। CA का फुल फॉर्म सबको पता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट। कौन किसने सोचा है चार्टर्ड अकाउंटेंसी 12th कॉमर्स के बाद? कॉमर्स के कितने सारे लोग हैं कॉमर्स के, बोलो कॉमर्स के। तो आप लोगों ने कोई प्रोफेशनल कोर्स ग्रेजुएशन के साथ सोचा है कि नहीं सोचा है? ऐसे उसमें डरने की बात नहीं है, पास होना ना होना नहीं, बट अटेम्प्ट करने के लिए क्या सोचा है, क्या सोचा आपने? यस, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, वेरी नाइस। नेक्स्ट, कॉमर्स में किसने क्या सोचा है और? राइट। सो अपार्ट फ्रॉम योर ग्रेजुएशन, राइट, देयर आर वेरियस कोर्सेज। जैसे अभी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग है, तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के लिए आप CFA कर सकते हो, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट। यू कैन डू CRM, यू कैन डू एक्चुरीज पता है सबको? एक्चुरीज, व्हाट डू यू मीन बाय एक्चुरीज? नहीं पता है? ये बहुत ही नया फील्ड है। अभी जैसे अपने इंडिया में अराउंड 5 लाख CA रहेंगे, 5 लाख CAs है, लेकिन इंडिया में सर्टिफाइड एक्चुरी सिर्फ 3000 है, 3000 ओनली। सो आपने अभी इसकी ऐड देखी ना, कपिल शर्मा की एक ऐड आई कि उनके फोटो पे हार है, राइट, और वो बोलता है नहीं ऐसा हार लग जाएगा तो क्या करना चाहिए, क्या लेना चाहिए? इंश्योरेंस। कितने रुपए का वो इंश्योरेंस बता रहे हैं? कुछ 400 रुपया मंथली, 400 मंथली भरो, और अगर आपको कुछ हो जाएगा, समझो आपके फोटो के ऊपर हार लग गई, तो आपके फैमिली को 1 करोड़ रुपया मिलेगा। तो क्या इंश्योरेंस कंपनी खैरात देने के लिए बैठी है? आर दे देयर फॉर चैरिटी? सो हाउ इन 400 रुपीज मंथली मीन्स रफली 5000 रुपीज ईयरली में, हाउ दे कैन अफोर्ड टू पे 1 करोड़ रुपीज? 1 करोड़ रुपीज दे रहे, 400 मंथली रफली, मतलब 5-6 हज़ार रुपये आप साल का भरो। हाँ, सब्जेक्ट टू कंडीशन, आपकी एज, ये सब फैक्टर करके, लेकिन रफली आप यंग एज पे इंश्योरेंस ले रहे हो, आपकी हेल्थ अच्छी है, तो आपको 5000 रुपीज़ में 1 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस मिलेगा। हाउ इट इज़ पॉसिबल फॉर अ कंपनी टू मेक प्रॉफिट आउट ऑफ दैट? हाँ, सब थोड़ी मरते हैं बेस्ट, ये तो एक है ही कि ऑब्वियसली एक साल में कोई सब तो मरने वाला नहीं है, तो सबके 5-5 हज़ार रुपये कंपनी के उसमें चले गए। और ऑब्वियसली जो अभी सब नहीं मरे, बरोबर है, इन्होंने बोला सब नहीं मरे, मतलब सबके 5-5 हज़ार रुपये वो कंपनी के पास आ गए, वो करोड़ों रुपए वो कहाँ करेंगे? इन्वेस्ट करेंगे, वो मल्टीप्लाई होगा, उसका कंपाउंडिंग होगा, करेक्ट, और उसमें से 2-4 क्लेम आएंगे तो वो दे देंगे, फिर भी उनके बहुत सारे कंपाउंडिंग होगा। लेकिन ये सारा क्या है? बैकवर्ड कैलकुलेशन है कि कंपनी को कैसे कैलकुलेट करा जाए, कितना प्रीमियम रखा जाए, तो ये सब कैलकुलेशन कौन करता है? एक्चुरीज। सो एक्चुरीज इज अ वेरी स्पेशलाइज्ड फील्ड फॉर स्पेसिफिकली इन इंश्योरेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट कंपनीज, कि कितना रिस्क और कितना रखे कि जैसे कंपनी को भी बेनिफिट हो, कस्टमर को भी बेनिफिट हो। सो इट रिक्वायर्स एडवांस लेवल ऑफ मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस। तो उसकी लेवल्स होती है CA की तरह, ओके, और आप पूरी लेवल पास करो तो आपको एक्चुरी, सर्टिफाइड एक्चुरी आप बन सकते हो। और अगर CA की तरह एग्ज़ाम नहीं देना है तो कई कॉलेजेस जैसे रुइया है, आपको बैचलर इन एक्चुअल साइंस कोर्स भी ऑफर करते हैं, लेकिन उसके लिए आपका थोड़ा मैथ्स स्टैट्स पावरफुल चाहिए। तो बैचलर इन एक्चुअल साइंस भी कर सकते हो, या तो आप एक्चुरीज का BCom या BSc के साथ आप एक्चुरीज की CA की तरह एग्ज़ाम भी दे सकते हो। यस, come here. Come on.
As you mentioned for actuaries about statistical science, you told that a math has to be strong. What type of maths do you intend to specify, algebraic or geometrical? Basically, statistical, applied maths. Basically, applied maths. Not going into linear and integration and all that, but applied maths and financial maths. So there are financial calculators also. There are software also like Excel and R. But your like aptitude for numbers should be there. See, some people are very artistic. They understand design and paints, and some people are very technical and number oriented. जिनको numbers समझ में आते हैं. So if you are good in numbers, you can do it 100%. So very good question. So actuaries is a very growing and a new field which you can start your exams giving basic papers right from 11th standard. उसके 13 पेपर्स होते हैं, अलग अलग उनकी बहुत सारी डिफ़िकल्टी लेवल्स होती है, लेकिन उसके जो ईजियर पेपर्स है वो 11th स्टैंडर्ड से लोग देना शुरू कर देते हैं. और ज़रूरी नहीं है कि उसको 3 साल में ख़त्म करना है, 4 साल में ख़त्म करना है. यू कैन टेक योर ओन टाइम एंड कंप्लीट योर एक्चुअली. ओके. फिर CFA है, इट्स अ US degree chartered financial analyst. That is also very good curriculum designed by the professionals. It has online exam, multiple choice exam, but the fees has to be paid in dollars. So per attempt you have to pay fees of 1.5 lakh approx. CS, company secretary. Company secretary is a course where like a secretary does work for a person, right? So company secretary does all the work for the company, right from formation of company, running of the company, dividend, shareholders, everything, whatever technical and legal part of the companies is there, it is taken care by the company secretary. So कई लोग लॉ के साथ कंपनी सेक्रेटरी करते हैं, कई BCom या कॉमर्स फील्ड के साथ भी CS करते हैं. सो बोथ आर वेरी गुड. CA में भी लॉ होता है, CA में लॉ और अकाउंट्स होता है. CS में ज़्यादा लॉ के ऊपर ध्यान दिया जाता है, कॉर्पोरेट लॉ के ऊपर. CMA जो पहले ICW किया बोला जाता था, ओके, कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटिंग, अभी उसका नाम किया है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट. सो CMA इज ऑल्सो रिक्वायर्ड इन एवरी प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट कंपनी. अ CMA इज ऑल्सो रिक्वायर्ड. इट इज़ लिटिल बिट easier to crack than CA. Next. So first of all NEP क्यों आया, जस्ट ओवरऑल जिस दे रही हूँ कि अपने पास सबसे ज़्यादा यूथ पॉपुलेशन है. नॉलेज, रैपिड चेंजेस इन नॉलेज लैंडस्केप. अभी हमने देखा कि AI आ गया, गूगल है, ये है, तो नॉलेज लैंडस्केप बहुत चेंज हो गया. तो हम लोग भी चेंज नहीं करेंगे एजुकेशन सिस्टम, तो वी विल नॉट बी एबल टू कोप अप विद द वर्ल्ड. So changing employment and global ecosystem. Next. तो जस्ट थिंक कि एजुकेशन सिस्टम जो चेंज है वो इंडियन एथोस के ऊपर ध्यान दे रहा है. तो हमें ऐसे सब्जेक्ट्स भी आएंगे जैसे इंडियन नॉलेज सिस्टम, IKS भी सीखना पड़ेगा जिसमें अपनी इंडियन हिस्ट्री, इंडियन नॉलेज सिस्टम, इंडियन रूट्स के बारे में है. फिर क्रिटिकल थिंकिंग और केस स्टडीज़ के ऊपर, जैसे फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में बोला कि वहाँ पे असाइनमेंट्स अच्छे रहते हैं, वो रहते हैं. तो India is also trying to inculcate all the things into the education field, which will be slowly get the fruits. एकदम अचानक नहीं आ पाएगा NEP implementation, because at our level we are struggling with NEP implementation because we have a large number of students. Suddenly change, but it is a good change which will give its fruits in the future years. Next. So NEP में आपको entry exit है कि आप अगर 1 साल में समझो फर्स्ट ईयर किया, आपको लगता है कि अभी मुझे 2 साल ब्रेक लेना है और मुझे कुछ इंटर्नशिप करनी है, कुछ करना है, गांव में खेती करनी है, तो आप जा सकते हो. आपका क्रेडिट जमा होंगे एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स में. अपार ID मिलता है, आपके आधार कार्ड का आपका फ़ोन नंबर लिंक होगा, आपकी कॉलेज में आपको बोला जाएगा यू डाउनलोड योर अपार ID. आप वो अपार ID यूनिवर्सिटी में जाएगा और आप जो जितनी एग्ज़ाम पास होती जाएगी, जैसे DG लॉकर है ना, वहाँ पे आपकी मार्कशीट आती है, ऐसे यूनिवर्सिटी के क्रेडिट्स भी आपके वहाँ पे जमा हो जाएंगे. तो बीच में आपको एंट्री एग्ज़िट लेनी है तो इट विल बी ईजी. समझो कोई स्टूडेंट अभी यहाँ पे है,
एक साल किया, फिर 2 साल के बाद बैंगलोर में पढ़ना चाहता है तो अपने वो क्रेडिट्स वो यूनिवर्सिटी में ट्रांसफ़र करके वो सेकेंड ईयर से शुरू कर सकता है, ऐसा है। लेकिन वो थोड़ा थोड़ा इम्प्लीमेंटेशन में ऑब्वियसली सब्जेक्ट टू लिटिल कंडीशन। तो अभी बैचलर्स डिग्री 3 या 4 साल की है, जिसको मास्टर्स नहीं करना है वो 3 साल में भी एग्जिट ले सकता है बैचलर डिग्री के साथ, और जिसको मास्टर्स करना है वो बैचलर डिग्री 1 साल आगे बढ़ाएगा और फिर मास्टर 1 ही साल का हो जाएगा इंस्टेड ऑफ 2 years। सो अल्टीमेटली इट कम्स द सेम वे। नेक्स्ट, सो अल्टीमेटली एट द एंड वॉट एवर करियर यू चूज, कोई भी करियर में जाओ, राइट। आप समझो कोई डॉक्टर के पास जाते हो, बीमार होते हो, राइट, तभी हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं। अभी वो डॉक्टर आपसे थोड़ी कई हमारे जो फैमिली डॉक्टर होते हैं, पहले तो हम लोग उनसे बात करते हैं ना तो हमारी आधी बीमारी निकल जाती है। येस और नो? यस, आधी बीमारी तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वो हमें देख लेते हैं तो हमें सेटिस्फैक्शन मिल जाता है। वाई? बिकॉज वो एश्योरेंस, वो कनेक्ट विद द पीपल इज इम्पॉर्टेंट। सो वॉट एवर फील्ड यू गो, your communication skills, then your personality, leadership, motivation, critical thinking, how to solve, okay, emotional and social quotient, that is very important. Emotional and social quotient, you have to have empathy for others. And what is empathy? To keep yourself in shoes of others, दूसरों के perception से जरिए से देखना कि नहीं, मैं अगर ये सिचुएशन होता तो मैं क्या करता। हमें फ़ौरन बुरा लग जाता है, करेक्ट, कि फ्रेंड ने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, लेकिन आप वो सिचुएशन में होते थे तो आप क्या करते थे? यू थिंक इन दैट डायरेक्शन, ऑटोमेटिकली योर थिंकिंग विल चेंज। सो दिस विल हेल्प यू इन योर फ्यूचर। ऑर्गेनाइजेशनल स्किल, जैसे तैसे रख दिया, ये कर दिया, तो योर इफ़ यू आर ऑर्गेनाइज्ड, योर वर्क एंड योर स्टडीज़ विल बी वेरी ईजी। अगर आप ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टडीज़ करते हो, ऑर्गेनाइज्ड वे में आप टाइम टेबल सेट करोगे, लेसन्स करोगे, तो आपका बहुत आसान हो जाएगा, राइट। सो ये स्किल्स सबके लिए रिक्वायर्ड है, कोई कॉमर्स नहीं, आर्ट्स नहीं, ह्यूमैनिटीज़ नहीं, सबके लिए। आप इंजीनियर बनो, आप डॉक्टर बनो, आप पेंटर बनो, आप म्यूजिशियन बनो, कुछ भी बनो, लेकिन ऑल दिस इज रिक्वायर्ड, राइट। नेक्स्ट, हाँ, अभी ये क्या समझ में आ रहा है सबको? सबको क्या समझ में आ रहा है? आइसक्रीम तो बेस तो सबके पास है, वो बन जाएगा। आप ग्रेजुएट होगे, कोई कॉमर्स ग्रेजुएट बनेगा, कोई साइंस ग्रेजुएट बनेगा, कोई आर्ट्स में जाएगा, कोई प्रोफेशनल बनेगा, सबके पास एक बेस तो बन जाएगा। फिर सबकी टॉपिंग्स अलग अलग होगी, सबकी इंडिविजुअल टॉपिंग्स होगी, वो कोई आपसे छीन नहीं सकता है, राइट। 2 कॉमर्स ग्रेजुएट आएंगे मेरे पास, समझो मैं इंटरव्यू ले रही हूँ, 2 बीकॉम स्टूडेंट आएंगे, तो दोनों में मैं कैसे भेदभाव करूँगी? दोनों के पास डिग्री है, दोनों के पास अच्छे मार्क्स है, मैं भेदभाव कैसे करूँगी? डिफ्रेंशिएट कैसे करूँगी? बाय दीज टॉपिंग्स, कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए मुझे कौन सी टॉपिंग्स पसंद है, उस हिसाब से मैं लूँगी। सो व्हाट आर दीज टॉपिंग्स? योर स्किल्स, your soft skills, your skills, and then you can make a souffle according to the choice of the customer or the employer, right? Customization का ज़माना है, जैसे चाहिए ऐसे बना के देंगे। So your base is there, you have to add on your skills acquire करो, जैसे इंडस्ट्री में चाहिए, प्रेवलेंट नॉर्म्स में चाहिए, कस्टमर्स को चाहिए, उस हिसाब से आपके खुद की स्किल करो। डोंट कॉपी अदर्स, बिकॉज ये एज पे बहुत होता है। अभी मेरे सब फ्रेंड हैं ना, ये कोर्स कर रहे हैं, तो मुझे भी वो करना है। इट्स नॉट नेसेसरी। हम लोग को वेनिला आइसक्रीम बना के कोई फ़ायदा नहीं है, सब लोग एक तरीके का दिखेगा, राइट। वी हैव टू मेक आवर ओन स्पेशलाइजेशन। सो जब भी आप चूज़ करते हो, डोंट वरी, जो भी कोर्स में जाओगे नए फ्रेंड्स मिल जाएंगे, एंड कनेक्ट विद द ओल्ड फ्रेंड्स ऑल्सो। आप अपने ओल्ड फ्रेंड्स भी बना के रखो, नए बनते जाएंगे। जो भी कोर्स में जाओगे तो 2-4 दिन नया लगेगा, 5 दिन नया लगेगा, 10 दिन नया लगेगा, नए फ्रेंड्स बन जाएंगे। और बनाओ, नए लोगों से कनेक्ट करो, राइट। सो डोंट बी अफ्रेड कि मैं अकेला ही वो कोर्स कर रहा हूँ, मेरे आजू बाजू के सारे, मेरे स्कूल के या मेरे कॉलेज के सारे स्टूडेंट वो कॉलेज में जा रहे हैं, या वो कोर्स कर रहे हैं, या ये कर रहे हैं, वो अच्छा, मेरे नेबर ने बोला यही कर। नहीं,
आपको करना है, आप रिसर्च करो, कोई भी आपको, आपके पास बहुत सारे वेल विशर्स गाइडेंस होंगे, उनका सुनो, उनसे बातें करो, लेकिन अपना रिसर्च करो, अपनी थिंकिंग लगाओ और अपना क्वेश्चन खुद आंसर करो. यू हैव टू आंसर योर ओन क्वेरीज. बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, यू हैव टू आंसर. और कभी उसमें गलत डिसीजन भी ले लिया तो डोंट वरी, एंट्री एग्जिट सिस्टम है, बहुत सारे ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं. कॉमर्स से साइंस से कॉमर्स में जा सकते हो, कॉमर्स से आर्ट्स में जा सकते हो. अचानक नंबर्स नहीं पसंद है तो आप हिस्ट्री कर सकते हो. इंग्लिश लैंग्वेज पसंद आ गई वो उसमें कर सकते हो. नथिंग टू वरी, सब ओपन है. एवरीथिंग, द वर्ल्ड इज़ ओपन फॉर यू. इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको 20 साल पे ग्रेजुएट होना है, 21 साल में शादी करनी है, ऐसा कोई नॉर्म्स नहीं है. राइट, नथिंग इज देयर. यू हैव टू डू योर ओन वर्क. नेक्स्ट, सो अ स्टूडेंट इज़ नॉट अ कंटेनर टू फिल. आप सिर्फ मतलब नॉलेज जमा कर करके कोई फ़ायदा नहीं है. इट्स अ टॉर्च टू बी लिट अप. सो आपको एक अपनी ज्योति जगानी है एंड यू हैव टू हैव योर ओन पर्सनैलिटी and own knowledge and inquisitiveness which will take you to the places. Okay, so thank you. And right now I think so मैंने आपको जो भी पॉसिबल है गाइड किया है. एंड 1-on-1 भी कभी भी कुछ है तो मैडम के साथ आप कनेक्ट करो, अन्वेषणम फाउंडेशन के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं. सो वेरियस फील्ड में कुछ स्पेशलाइज्ड नॉलेज भी चाहिए तो वी हैव द प्रोफेशनल्स एंड वी कैन कनेक्ट विद देम. थैंक यू. एंड एनी क्वेरीज, अगर कोई क्वेरीज है तो प्लीज़ कम अप विद द क्वेरीज. एनी क्वेरीज, पेरेंट्स और There's one question online. okay. The student was asking a little more details Huh? about NATA and NATA. creative architecture. Okay, we can connect that student. You can that student can leave the phone number or the contact number, and I think so Anveshanam Foundation and EduSig and Madam we can connect you with the right person who can specifically guide you for NATA. Because I can give you the overview, I am not the right person to guide you specifically for NATA. So the person we will connect, that person, we can be in touch with that person. Thank you very much. Any other questions? Yes. Designer field, what was that? Huh? UV UX designer field. I saw on one slide. VHX and so ultimately nowadays there are computer aided designs also. So after 12th science or 12th commerce with maths, you can go for design, and in design also bachelor of design courses are also there. There also NATA exam also you can give. So like architecture, बी आर्क की तरफ बी डिज़ाइन भी कर सकते हो, उसमें कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन भी हो सकती है, नॉन कंप्यूटर, फिर VHS, ये सारे भी फील्ड ओपन है. थैंक यू. एनी अदर? प्लीज़ डोंट फील शाय कि आपका क्वेश्चन क्या है. कुछ भी जो भी दिमाग में आया वो पूछ सकते हो आप लोग. पेरेंट्स ऑल्सो, दादा दादी भी है शायद. Thank you. So thank you very much, Professor Shubhda, for giving us so much time and taking us through all this. पूरा overview उन्होंने सारे subjects का, arts, science, everything she gave. So we are very thankful to you for sparing your time and coming here. So on behalf of EduSig, just a small token of appreciation from EduSig and Singh Sabha Gurdwara, I'll request Manmohan Singh ji to come and hand over a memento to her. Hello.